તો બીજી બાજુ મણિપુર કે જે હાલ ભડકે બળી રહ્યો હોય એવી પરિસ્થિતિમાં છે। અહીં હિંસામાં અત્યાર સુધીમાં 54 લોકોના મોત થઈ ચૂક્યા છે, 100થી વધુ લોકો ઘાયલ થઈ ચૂક્યા છે, જેમની સારવાર પણ થઈ રહી છે। સેનાના જણાવ્યા અનુસાર અત્યાર સુધીમાં તમામ સમુદાયના 23,000થી પણ વધુ લોકોનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું છે અને સૈન્ય કેમ્પમાં તેમને મોકલવામાં પણ આવ્યા છે। તો રાજ્યમાં સુરક્ષા દળોની 14 કંપનીઓને પણ તૈનાત કરવામાં આવી છે। કેન્દ્ર સરકાર રાજ્યમાં વધુ 20 કંપનીઓને મોકલશે તેવી પણ જાણકારી છે। જો કે અત્યારે અનેક વિસ્તારો એવા છે મણિપુરના કે જ્યાં હિંસા થંભી ગઈ છે અને સ્થિતિ સામાન્ય થઈ રહી હોય એવું લાગી રહ્યું છે। જો કે આ સ્થિતિ પૂર્ણ સામાન્ય થતા હજુ સમય લાગશે। ચુરાંદાપુર ગામ છે, જિલ્લો છે કે જ્યાં આજે વહેલી સવારે 3 કલાક માટે કર્ફ્યુ હટાવી લેવામાં આવ્યો હતો, જેથી લોકોને પણ આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ ખરીદી શકાય। અને 10 વાગ્યાની સાથે જ સેના અને આસામ રાઇફલ્સે સમગ્ર જિલ્લામાં ફ્લેગ માર્ચ પણ કરી હતી। અને આ તરફ મણિપુર હાઈકોર્ટના આદેશ વિરુદ્ધ જે ભાજપના ધારાસભ્ય ડિંગાંગુલ ગંગમી સુપ્રીમ કોર્ટ પણ પહોંચ્યા છે। જે પ્રકારની આ પરિસ્થિતિ અત્યારે જોવા મળી રહી છે મણિપુરમાં, અને આ પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે તમામ તૈયારીઓ પણ થઈ રહી છે, વિરોધ પણ થઈ રહ્યો છે। મણિપુરમાં થયેલી હિંસામાં અનેક લોકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે। મણિપુરમાં અત્યાર સુધીમાં 54 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે। મૃતકોમાંથી 16 મૃતદેહો ચુરાચંદપુર જિલ્લા હોસ્પિટલના શબઘરમાં રાખવામાં આવ્યા છે, જ્યારે 15 મૃતદેહો જવાહરલાલ નહેરુ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ ઇમ્ફાલ ઈસ્ટમાં છે। આ સિવાય ઇમ્ફાલ પશ્ચિમમાં લેમ્ફેલ ખાતે પ્રાદેશિક તબીબી વિજ્ઞાન સંસ્થાને 23 લોકોના મોતની પુષ્ટિ કરી છે। પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લાવવા રાજ્યમાં સેના અને આસામ રાઇફલ્સના લગભગ 10,000 જવાનો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે। બે સમુદાયો વચ્ચેની લડાઈમાં ઘણા લોકો માર્યા ગયા છે। આ સિવાય લગભગ 100 લોકો ઘાયલ થયા છે। મૃતદેહો ઇમ્ફાલ પૂર્વ અને પશ્ચિમ, ચુરાચંદપુર અને બિશનપુર જેવા જિલ્લામાંથી લાવવામાં આવ્યા હતા। તે જ સમયે ગોળીથી ઘાયલ થયેલા ઘણા લોકોની સારવાર રિમ્સ અને જવાહરલાલ નહેરુ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સમાં ચાલી રહી છે। સંરક્ષણ પ્રવક્તાએ કહ્યું કે તણાવગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં ફસાયેલા કુલ 13,000 લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢી સેનાના કેમ્પમાં મોકલવામાં આવ્યા। આર્મી પીઆરઓએ કહ્યું કે સુરક્ષા દળોની ત્વરિત કાર્યવાહીના કારણે હિંસા પ્રભાવિત વિસ્તારોના વિવિધ લઘુમતી વિસ્તારમાંથી લોકોને બચાવી લેવાયા છે। ચુરાચંદપુર, કાંગપોકપી, મોરે અને કાકચિંગમાં પરિસ્થિતિ હવે સામાન્ય છે। સૈન્ય એકમો, રેપિડ એક્શન ફોર્સ અને કેન્દ્રીય પોલીસ દળોને ઇમ્ફાલ ઘાટીના તમામ મુખ્ય વિસ્તારો અને રસ્તાઓ પર તૈનાત કર્યા હતા। હવે ઇમ્ફાલ ઘાટીમાં સ્થિતિ નિયંત્રણમાં આવી છે। જનજીવન સામાન્ય થવા લાગ્યું છે। અહીં દુકાનો અને બજારો ફરી ખુલી ગયા છે। માર્ગો પર વાહનો દોડવા લાગ્યા છે। ગુરુવાર અને શુક્રવારની રાત્રે ઇમ્ફાલ પૂર્વ અને પશ્ચિમ જિલ્લામાં આગજનીના છૂટાછવાયા બનાવો થયા હતા। બદમાશોએ નાકાબંધી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જો કે સુરક્ષા દળોએ પરિસ્થિતિને વણસતી અટકાવી હતી। બ્યુરો રિપોર્ટ, ગુજરાત ફર્સ્ટ। અમારી સાથે દેવનાથ પાંડે પણ જોડાઈ ગયા છે। અને દેવનાથ, મણિપુરની સૌથી પહેલા જ્યારે આપણે વાત કરીએ, છેલ્લા ઘણા દિવસથી મણિપુર હિંસામાં બળતું હોય એવી પરિસ્થિતિ હતી। અત્યારે ત્યાં શું સ્થિતિ છે અને શું સ્થિતિ સામાન્ય થવા તરફ જઈ રહી છે? देखिए, बिल्कुल साफ तौर से अभी जो मणिपुर से साफ तौर से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि अब जो हिंसा अभी देखने को मिली थी वो अब सामान्य होते जा रही है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर देश के गृह मंत्री जो है अमित शाह, वो लगातार मणिपुर के माफ कीजिएगा वहां के सभी बड़े अधिकारियों के टच में है, वहां के मुख्यमंत्री के टच में है। और एक बैठक भी इसके लिए बुलाई गई है, राज्य स्तर पर भी और केंद्र के स्तर पर एक बैठक बुलाई गई थी और वहां के हालातों का जायजा लिया गया था। क्योंकि देखने को मिला था कि जिस तरह से मणिपुर में बीते दिनों लगातार हिंसा देखने को मिल रही थी, जनजीवन वहां असामान्य हो गया था, तो इन सबको काबू करने के लिए वहां पर सेना को भी उतारा गया था। और सेना ने इस दौरान जब करीब 2300 से 2400 लोगों को वहां पर सुरक्षित बाहर निकाला है, बचाया है उन्हें, और अभी भी वहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि जो हिंसा है उसको शांत करने की सेना की तरफ से कोशिशें की जा रही है। तो युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, लेकिन आज देखा जा रहा है कि आज वहां पर जहां धारा 144 के बीच में गाड़ियां भी चलती दिखी, लोग बाजार में भी निकले, तो कह सकते हैं कि अब हालात पहले से ज्यादा
सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जा रहा है तो इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं एक तरह से राजनीति भी देखने को मिली, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी साफ तौर से इस पूरे मसले पर बयान देते हुए कह रही थी कि हमारे राज्य के जितने भी लोग वहां पर फंसे हैं उनको निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। तो मिला जुला कर देखा जाए तो स्थिति सामान्य वहां पर मणिपुर में हो रही है, और जिस तरह से इन जातीय समुदायों के बीच को लेकर हिंसा हुई थी, चाहे वो मैती समाज हो, नागा समाज हो, कुकी समाज हो, इन सब के बीच में जो हिंसा देखने को मिल रही थी, उसमें जब आधिकारिक आंकड़ा निकला आज कि वहां पर ये कहा गया कि अब तक इस पूरे हिंसा में 30 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इस रिपोर्ट आने के बाद कई सारे विरोध करने वाले लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि 30 लोग नहीं बल्कि 100 से ज्यादा लोगों की इस पूरे हिंसा में जाने जा चुकी हैं। बहरहाल अब केंद्र की नजरें भी वहां पर लगातार बनी हुई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री से लगातार बातचीत हो रही है, गृह मंत्री अमित शाह की और बड़े अधिकारियों की। तो कह सकते हैं कि स्थिति अब पहले से कहीं ज्यादा सामान्य हो चुकी है। जी, और दिवनाथ, जैसे अभी जानकारी में ये मिल रही है कि कांग्रेस के जो नेता है शशि थरूर, उन्होंने बोला है कि अभी भाजपा एक ही साल हुआ है और वहां पे सरकार बनी है और एक ही साल के अंदर ये प्रकार की परिस्थिति वहां पे देखी जा रही है, और इस साथ उन्होंने राष्ट्रपति शासन लाने की भी वहां पे बात की है और विरोध भी अभी विपक्ष कर रहा है। उसकी क्या स्थिति और जो राजनीति वहां पे इस पूरी हिंसा पे हो रही है उसके लिए उससे क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, साफ तौर से जब इस तरह की हिंसा या फिर दंगा कहीं भी किसी भी राज्य में देखने को मिलती है तो वहां पर जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं वो तो बीच बचाव की कोशिश करते हैं या फिर हालात को काबू करने की कोशिशें करते हैं, और सरकार की तरफ से लगातार इस तरह के बयान भी सामने आते रहते हैं। लेकिन जो पार्टी उस वक्त मौजूदा राज्य में, चाहे हम मणिपुर की ताजा हालत में बात कर लें, तो जो पार्टी विपक्ष में होती है वो लगातार इस तरह के आरोप लगाती है और राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की जाती है। आपको याद होगा जब CAA के टाइम पर पूरे देश भर में इस तरह के हालात बने थे, और खासतौर से जब देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा दंगा देखने को मिला था, तो वहां पर भी इस तरह की बातें कही जा रही थी और कई तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा था। वहां भी राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की जा रही थी। बहरहाल वहां पर बीजेपी की तरफ से कही जा रही थी, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। तो यहाँ पर अब कहीं ना कहीं मणिपुर हिंसा के सामने आने के बाद अब जो विपक्ष में बैठी पार्टियां हैं वो सब इकट्ठा होकर अब इस पूरे मुद्दे पर मिलकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही हैं, और कहीं ना कहीं बयानबाजियां ऐसे निकलकर सामने भी आ रही हैं, जो अब ये कहीं ना कहीं प्रदर्शित करती है कि मणिपुर में जिस तरह से ये हिंसा हुई है उसको लेकर अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि मौजूदा सरकार वहां की स्थितियों को कंट्रोल करने में नाकामी कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है। तो अब इसे एक राजनीतिक रूप से देखा जा रहा है। जी, और ये भी जानना चाहेंगे दिवनाथ कि अभी वहाँ पे ऐसे कौन से जिले हैं अथवा और तो कौन से ऐसे विस्तार हैं जहाँ पे हिंसा जो है वो अभी रुक गई है, और जितने भी सेना है, पुलिस है, उसके वो लोग वहाँ पे कार्यवाही कर रहे हैं अथवा वहाँ पे सुरक्षा एजेंसियां पहुंची हुई है? देखिए, अगर कार्रवाई की बात करें तो जी, अगर कार्रवाई की बात करें तो सेना पर, जब से सेना को वहां पर उतारा गया है तब से लगातार, मैंने कहा जैसे पहले कहा कि 2300 से 2400 लोगों को अब तक सेना ने वहां से सुरक्षित बाहर निकाला है, और ये भी आधिकारिक रूप से बयान भी सामने आया है कि जब से असम राइफल्स को वहां पर उतारा गया है तब से हालात को काबू करने में और भी ज्यादा मदद मिली है। और ये भी आधिकारिक रूप से सेना की तरफ से बयान आया है कि उसके बाद इस तरह की स्थितियां जो पहले थी वो अब वहां पर दोबारा देखने को नहीं मिली, और अब वहां के बड़े बड़े नेताओं का, जो स्थानीय विधायक है, उनका भी बयान साफ तौर से आया है, और ये उन्होंने कहा है कि अब यहाँ के हालात जो हैं वो सामान्य हो चुके हैं, अब हिंसा जैसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। फिर भी अब अभी वहां पर हालात को काबू करने में या पूरी तरह से सामान्य करने में वक्त लग सकता है, जिसके लिए लगातार जो है युद्ध स्तर पर पूरी प्रक्रिया चल रही है। सेना लगातार वहां पर जमीनी स्तर पर है, स्थानीय पुलिस प्रशासन भी जमीनी स्तर पर है। तो कह सकते हैं कि जो पहले की स्थिति थी उससे कहीं ज्यादा अब तस्वीरें साफ हो चुकी हैं, तो बहुत जल्दी हो ना हो वहां पर इस तरह की जो हालात हैं वो सामान्य हो सकते हैं। जी, और साथ में अगर हम दिल्ली की भी बात कर ले दिवनाथ, दिल्ली में भी जंतर मंतर पे बहुत दिनों से 15 दिन से विरोध चल रहा है, रेसलर्स विरोध कर रहे हैं वहां पे। अभी उसकी क्या स्थिति है? ब्रिजभूषण पे FIR हो चुकी है, फिर भी अभी भी ये लोग विरोध कर रहे हैं और अभी किसान भी उसके साथ समर्थन देते हुए दिख रहे हैं।
देखिए बिल्कुल साफ तौर से दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान पिछले 15 दिनों से धरने पर बैठे हैं और वहां पर लगातार जो बीजेपी के सांसद हैं कैसरगंज यूपी से ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। पहले तो ये बात कही जा रही थी कि पहले उनके पद से उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई थी उसके बाद एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, लेकिन आज जब किसानों का जत्था पूरा का पंचायत का पूरा जत्था वहां दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह पहुंचने की कोशिश कर रहा था, तो एक सबसे अहम बात देखने को मिली कि दिल्ली की जो चारों तरफ से बॉर्डर हो, चाहे राजस्थान, हरियाणा या फिर पश्चिमी यूपी का इलाका हो, हर जगह पुलिस प्रशासन ने बॉर्डर के इलाकों को सील कर दिया था और वहां से सिर्फ किसानों को ही जाने दिया जा रहा था। उनके साथ अगर किसी भी तरह का कोई खाद्य पदार्थ है या फिर भारी भरकम मात्रा में, तो उन्हें नहीं ले जाने दिया जा रहा था। जाहिर सी बात है, इससे पहले जब देश में किसान आंदोलन हुआ था तो कुछ उस तरह की तस्वीरें दोबारा से देखने को ना मिले। प्रशासन पहले से अलर्ट था। लेकिन एक बात और कहा गया है, जो भारतीय किसान यूनियन के सबसे बड़े नेता हैं राकेश टिकैत, आज उन्होंने ऐलान किया है कि हम तब तक डटे रहेंगे जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता। यानी कि उन्होंने एक और तारीख दी है 21 मई की। उन्होंने कहा है कि 21 मई को देश भर से लाखों किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेंगे अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में जब परसों ये साफ तौर से कहा गया कि अब इस पूरे मामले में हम सुनवाई नहीं कर सकते, ये पहलवानों को हाई कोर्ट जाना होगा, उसके बाद से ये मामला और भी तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब ये पहलवान अब इस तरह से बैठ चुके हैं कि जब तक ब्रजभूषण गिरफ्तार नहीं होते तब तक वो यहाँ से हटने वाले तो नहीं है। लेकिन एक चीज और देखी जा रही है कि इस पूरे मामले में अब आरोप लग रहा है कि इसे राजनीतिक हवा दी जा रही है। ब्रजभूषण का जब बयान आया था, उन्होंने कहा था कोई बड़ा बिजनेसमैन है जो इन्हें फंडिंग कर रहा है। बहुत सारी तस्वीरें ऐसी पहलवानों के सामने आई थी कि ये पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठ तो रहे हैं, लेकिन इनका कहीं और रात में कहीं और रुकते हैं, 5 स्टार होटल में रुकते हैं। तो अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन पहलवानों की जो डिमांड है उस डिमांड को पूरा कराने के लिए वो पूरी तरह से मुस्तैद हो चुके हैं और आने वाले 21 मई को एक बड़ा हुजूम देखने को मिल सकता है दिल्ली के जंतर मंतर पर। जी, और जैसे आपने बोला दिवनाथ कि कुछ और भी हो सकता है और राजनीतिक भी ये हो सकता है जो विरोध भी हो रहा है। अभी जैसे किसान भी पहुंच रहे हैं, खाप पंचायत भी पहुंच रही है, क्या ऐसा भी हो सकता है कोई और ही एजेंडा हो और किसी और ही एजेंडा की वजह से ये इतना लंबा समय तक, इतने लंबे समय तक विरोध चल रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, वहां पे आप लड़ सकते हैं, तो वो वहां पे जा भी सकते, क्योंकि एफआईआर तो अभी हो ही चुकी है, तो अभी आगे कार्यवाही भी होगी, लेकिन कोई और एजेंडा की भी शक्यता? देखिए बिल्कुल साफ तौर से एफआईआर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना आदेश दिया था उसी दिन एफआईआर दिल्ली पुलिस ने कर दिया था और खुद बजरंग पुनिया ने अगले दिन मीडिया के समक्ष एक एफआईआर की कॉपी भी दिखाई थी। लेकिन इसके बाद जैसे सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया कि अब इस पूरे मामले में पहलवान वहां पर हाई कोर्ट में जाए, उसके बाद पहलवान और भी ज्यादा निराश हुए और वो कुछ इस तरह के जो खाप पंचायतें, जो कि पहले से ऐसा नहीं है कि आज ही खाप पंचायतें पहुंची हैं, जब पहलवान वहां पर धरना देने की शुरुआत कर रहे थे 23 मई को, 23 तारीख को, तभी से लगातार देखने को मिल रहा था कि हरियाणा के छोटे छोटे गांव से लगातार वहां पर खाप पंचायतों के बड़े बड़े मुखिया पहुंच रहे थे। लेकिन आज जिस तरह से राकेश टिकैत वहां पर पहुंचे, वो कहीं ना कहीं एक अलग रूप से देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले पहलवानों ने कहा था, जब आपको याद होगा जनवरी में पहली बार पहलवान धरने पर बैठे थे, तब उन्होंने किसी भी राजनीतिक पार्टी, ना ही किसान, किसी भी तरह इस तरह की संस्था को वहां पर निमंत्रण नहीं दिया था। लेकिन इस बार जब पहलवान दूसरे कड़ी में बैठने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले यही बातें कही थी कि कोई भी दल हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकता है। अब देखने को मिला, चाहे वो कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, आम आदमी पार्टी के हो, यहाँ तक कि किसान के नेता क्यों ना हो, तो बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, जिसे अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हो ना हो ये अपना अपना राजनीतिक रोटी यहाँ पर सेकने के लिए जा रहे हैं। तो किसानों का प्रदर्शन तो आपको याद होगा, जैसा मैंने जिक्र किया, बहुत ही लंबा प्रदर्शन चला था। तो उस तरह से तैयारियां की जा रही हैं कि अगर ब्रजभूषण शरण गिरफ्तार नहीं होते हैं तो जिस तरह से दिल्ली के बॉर्डर एरिया में किसान बैठे थे, ठीक उसी तरह से दिल्ली के जंतर मंतर का भी वही हाल किया जाएगा। वहां पर किसान भारी संख्या में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसे बीजेपी फिलहाल और एजेंडे के रूप में बता रही है। जी, और देवनाथ, अभी आप ही बोल रहे हैं कि भारी तादाद में लोग भी वहां पे आ सकते हैं, तो क्या जंतर मंतर के अलावा कोई और जगह पे भी इसी तरह का विरोध करने की इन लोगों की सोच है? और पुलिस के द्वारा अभी क्या कार्यवाही की जा रही है, कैसे बंदोबस्त किया जा रहा है? क्योंकि जैसे कि अभी किसान भी आ गए, खाप पंचायत ने भी सपोर्ट कर दिया है, तो बन सकता है कि और भी लोग यहाँ पे जुड़े और इस विरोध में शामिल हो।
देखिए बिल्कुल साफ तौर से सुरक्षा की अगर पहले बात करें, जैसा मैंने पहले कहा कि जो बॉर्डर के इलाके हैं, अगर आप पंजाब से आते हैं, हरियाणा से आते हैं या फिर उत्तर प्रदेश के जहां पर राकेश टिकैत जहां से आते हैं पश्चिमी यूपी बेल्ट से, अगर वहां से आप आते हैं तो अगर बड़ी तैयारी के साथ आते हैं तो सबसे पहले आपको बॉर्डर पर रोक दिया जाएगा और वहां पर आपको किसी भी तरह से, यानी कि आप खाली हाथ ही जा सकते हैं। तो राकेश टिकैत जो साफ तौर से ऐलान कर रहे हैं कि 21 तारीख को एक बड़ा जत्था किसानों का यहाँ पर पहुंचने वाला है, न सिर्फ पश्चिमी यूपी से बल्कि देश के कोने कोने से पहुंचने की बात की जा रही है। काफी बड़ा आंदोलन करने का जिक्र वो कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट हो चुकी है, क्योंकि किसान आंदोलन के बीच में जब किसानों की एंट्री दिल्ली के अंदर हो चुकी थी और उस वक्त देखा गया था किस तरह से ये किसान आंदोलनकारी जो थे वो लाल किले पर पहुंच गए थे और वहां पर खालिस्तानी मूवमेंट का झंडा फहरा दिया था। तो कुछ इस तरह का वाक्य दोबारा से दिल्ली के अंदर ना हो, चाहे वो पहलवानों के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, तो उस तरह की राजनीति एक बार फिर से देखने को ना मिले। दूसरी तरफ पहलवान अपने मंच से लगातार इस बात को बाकायदा अनाउंसमेंट करते हैं कि हम यहाँ पर अपनी मांग रख रहे हैं, यानी कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग रख रहे हैं। अगर कोई यहाँ पर पहुंच के अपना एजेंडा साधने की कोशिश करता है तो उससे पहलवानों के मंच का कोई भी लेना देना नहीं है। हालांकि पहलवान पहले से अपना बचाव कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, पप्पू यादव जब पहुंचे थे तो आपको याद होगा, पप्पू यादव साफ तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए दिखाई दे रहे थे, तो नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं उनको भी घेर रहे थे। तो यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों के नेता पहुंचकर अपनी अपनी रोटी साफ तौर से सेकते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस बात को लेकर बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं बहुत बार बयान भी सामने आ चुका है। लेकिन मामला ये काफी ज्यादा तूल पकड़ चुका है। पहलवानों का कहना है कि तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि काफी ताकतवर नेता कहे जाते हैं, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। लेकिन एक बात और देखी जा रही है, जहां पर ये पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हैं वहां से मैच 200 मीटर की दूरी पर खुद ब्रजभूषण शरण सिंह का सरकारी आवास भी है और वहां पर भी देखा जा रहा था आज सुबह सुबह कि वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं वहां पर किसी भी हाल में ना पहुंच सके। और सबसे बड़ी जो बात है दिल्ली पुलिस को लेकर हमेशा टारगेट किया जाता है या फिर सवाल उठाया जाता है सुरक्षा की, तो सुरक्षा इस बार काफी ज्यादा चाक चौबंद करके रखा गया था और 21 मई की जो तैयारियां हैं वो भी दिल्ली पुलिस काफी पुख्ता से करने की तैयारी कर रही थी। जी, और देवनाथ, लोगों को कोई परेशानी ना हो इस विरोध से, उसके लिए क्या किया जा रहा है? जी बस सवाल दोहराइएगा। ये जो जंतर मंतर पे इन लोगों ने विरोध किया है और अभी बहुत दिनों से वो वहीं पे है, इसकी वजह से ट्रैफिक और कोई और परेशान ना हो, कोई व्यक्ति परेशान ना हो, उसके लिए कोई व्यवस्थाएं की जा रही है? देखिए, अगर जंतर मंतर एक ऐसा जगह है दिल्ली का जहां पर सिर्फ पहले देखा जाता था कि जंतर मंतर को सिर्फ प्रदर्शन करने के लिए बनाया गया है और कई सारे लोग अपने अपने प्रदर्शन करने के लिए वहां पर आते हैं। बीच में ये कहा गया था, कोर्ट की तरफ से आदेश आया था कि जो प्रदर्शनकारी है वो जंतर मंतर से हटकर दिल्ली के रामलीला मैदान में जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण होता है। हालांकि उसके बाद प्रदर्शनकारी कुछ दिन तक वहां रामलीला मैदान में गए थे, लेकिन वहां पर जब प्रदर्शनकारी काफी प्रदर्शनों में बैठे, लेकिन उसके बाद वापस से जंतर मंतर पर आ गए। तो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने से आम जन को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जिस तरह से आज सुबह देखने को मिला जब किसान पहुंच रहे थे, तो हाँ, दिल्ली की सड़कें जो होती हैं आम लोगों के लिए काफी ज्यादा बाधित हो जाती हैं और इससे निपटना कहीं ना कहीं, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो या फिर लोकल पुलिस हो, इनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं और खासतौर से उन लोगों को दिक्कतें होती हैं जो लोग रोजमर्रा की तरह सुबह से शाम को अपने काम पर निकलते हैं। तो लेकिन जंतर मंतर का इलाका पूरी तरह से सेफ रहता है। वहां पर अगर आप अपना परिचय पत्र नहीं दिखाते हैं तो शायद आपको अंदर जाने भी नहीं दिया जाता है। तो कह सकते हैं कि जंतर मंतर एक प्रदर्शन का इलाका है, वहां पर आम लोगों को वहां प्रदर्शन करने से कोई दिक्कत फिलहाल नहीं हो रही है। जी जी देवनाथ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।